آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنی مرضی کے گھر میں مرضی کے شخص کے ساتھ بیاہ کر آئی تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جسے میں نے عمر بھر اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ عمیر کا نام میری زبان پر آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ میری زندگی عمیر سے شروع ہوتی اور عمیر پر ہی ختم تھی، مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ عمیر میری زندگی سے دور بھی جائے گا۔ میری شادی ہوئی تو میں خوش اس لیے بھی تھی کیونکہ میرے لیے عمیر کا خاندان بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس کی صرف 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے سب سے زیادہ مسئلہ شوہر کے بڑے بھائی سے تھا، جو کہ تھا ہی نہیں۔ یعنی مجھے جیٹھ کے رشتے سے شروع سے نفرت تھی کیونکہ میرے تایا امی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے تھے، جبکہ میرے چچا بہت رحم دل فطرت کے مالک تھے۔ خیر، میں نے اماں ابا کی مرضی کے خلاف جا کر عمیر سے شادی کی۔ ابا کا تو خیال تھا کہ عمیر کا خاندان اچھا نہیں ہے، مگر میں بضد تھی کہ میں عمیر کو 5 سال سے جانتی ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی خرابی ہو۔ اچھے خاندان سے تعلق نہ ہوتا تو وہ میری اتنی عزت نہ کرتا۔ یقین مانیے 5 سالوں میں ہم 1-2 بار ہی ملے تھے۔ ہمارا رابطہ زیادہ تر موبائل فون پر ہی رہتا۔ تبھی میرے لیے بھی عمیر بہت قابل احترام تھا اور اس کے لیے میں۔ تھوڑی دیر بعد عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ ہم دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہمارے پاس صرف اور صرف محبت تھی اور کچھ بھی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس آ کر بہت خوش تھے۔ عمیر میرے قریب آ کر بولا، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں بھی تمہیں پرسکون رکھنے کی کوشش کروں گی، ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ کیا میرے جانے کے بعد بھی وفادار رہو گی؟ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ آپ کہاں جائیں گے؟ میرا مطلب اگر میں مر جاؤں تب بھی؟ ہاں تب بھی میں تم کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ ہم نے یہ کہہ کر زندگی کا آغاز کیا، پر میں کیا جانتی تھی کہ عمیر کی یہ چھوٹی سی بات اتنی جلدی سچ ہو جائے گی۔ ابھی ہماری شادی کو 3 ہی دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ عمیر نے کہا تھا کہ وہ شام کے 6 بجے ہی گھر آ جائے گا، پر وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میرا تو اب پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ دراصل ہمارے گھر میں جو ساس تھیں، یعنی عمیر کی ماں، وہ کچھ خاص بات چیت نہیں کرتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں میں خاص پسند بھی نہیں ہوں، سو میں نے ان سے کوئی بات بھی نہیں پوچھی۔ جبکہ میری نندیں عجیب سی تھیں۔ وہ رات بھر جاگتی رہتی اور دن بھر سوئی رہتی تھیں۔ ان سے بات کرو تو وہ کسی بات کا سیدھے منہ جواب نہ دیتی، ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتی۔ انہوں نے تو مجھ سے بھابھی والے لاڈ بھی نہیں کیے، نہ ہی وہ رسمیں کیں جو ایک نند بھابھی کے ساتھ کرتی ہے۔ خیر، مجھے اس سے کیا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی میرا دیور وہاب میرے کمرے میں آیا اور بولا، بھابھی ابھی تک بھیا نہیں آئے کیا؟ آپ اکیلی بیٹھی ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عمیر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مگر ہمارے بیٹھنے کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ مجھے عمیر کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ وہاب، میں تمہاری بھابھی ہوں، ذرا فاصلے پر بیٹھو۔ میں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ایک فاصلہ رکھتی تھی، حالانکہ وہ میرے محرم تھے۔ ناراض نہ ہونا، پر اصل بات تو یہی ہے کہ دیور اور بھابھی کا رشتہ بڑا نازک ہے، اسے احترام میں رہنا چاہیے۔ دیور اور بھابھی، اس نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ کون سا دیور اور کون سی بھابھی؟ وہاب تو باقاعدہ ڈھٹائی پر اتر آیا تھا۔ تم ابھی میرے کمرے سے چلے جاؤ، کل بات ہوگی۔ میں نے اسے مختصر سا جواب دیا تو وہ اپنی قمیض کا کالر جھاڑتے ہوئے بولا، کیوں چلا جاؤں بھابھی؟ اس نے لفظ بھابھی چباتے ہوئے کہا، میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، کیا مجھے ملنے نہیں دو گی خود سے؟ مل لیا نا اب تم چلے جاؤ تو بہتر ہے، اور اگر نہ جاؤں تو؟ وہ ہر لفظ کھینچ کر پوچھتا تو مجھے بہت غصہ آتا۔ تو کیا کر سکتی ہوں میں ہی چلی جاتی ہوں اس کمرے سے۔ میں باہر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ باہر کیوں جاؤ گی؟ میں کون سا کوئی تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں؟ اور دیکھو، تم نے تو اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر شادی کی۔ تم اتنی بہادر ہو کہ اپنے باپ کے سامنے ڈٹ گئیں، تو کیا اپنے دیور کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں عمیر سے محبت کرتی تھی، ماں باپ سے بغاوت نہیں کی میں نے۔ انہوں نے مجھے اپنی دعاؤں سے رخصت کیا ہے۔ ہاں، میں سب جانتا ہوں تمہیں کس نے دعاؤں سے رخصت کیا ہے۔ اب میرے سامنے زیادہ مومنہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میرا بھائی بہت معصوم اور شریف ہے، تم نے اس کو پھانس تو لیا،
अब उसके साथ निभा भी लेना। ऐसा सारा दिल किसी और पर आ जाए और तुम ये घर छोड़कर चली जाओ तो हमारी बदनामी हो। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करते हो? तुमको मैं एक ऐसी लड़की लगती हूँ? मैं ऐसी होती तो फिर किसी अमीर लड़के के साथ भाग कर जाती ना। तुम्हारा भाई तो बहुत ही गरीब है, उसके पास तो 2 वक्त के खाने के पैसे हैं बस। मैं अपने शौहर की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे बताना चाहती थी कि इस घर में आने के लिए मुझे माँ बाप से लड़ाई करने की ज़रूरत ना थी, और ना ही मैंने ये सब अपनी अय्याशी के लिए किया, बल्कि मोहब्बत के लिए किया है। मेरी बात सुनकर वो कुछ न बोला और कमरे से चला गया। मैं उसे देखती ही रह गई थी। अजीब इंसान है, मैंने दिल में सोचा। शौहर की परेशानी से बढ़कर अब उसकी बातें मेरे जहन में गूंज रही थीं, पर मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मैं इस घर में नई आई थी। क्या पता सास और नंदुक के तेवर क्या होते। अगर मैं इसे कुछ कह देती तो वो मुझे क्या कहती। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी कि यही इस मसले का हल था। लेकिन सुबह तक मैं इंतज़ार ही करती रह गई। उमैर ने घर नहीं आना था, सो वो ना आए। काफ़ी देर गुजर गई थी। मेरा तो अब दिल दहल गया। फिर एक ऐसी इत्तला मिली जिसने मेरे पाँव तले से ज़मीन खींच ली। मेरी सास ने आकर रोते हुए मुझे बताया, तू मेरे बेटे को खा गई। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मर गया है वो। अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सास की ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? मेरा शौहर जिंदा है, वो मर नहीं सकता। मर गया है वो बेचारा, अब इस दुनिया से चला गया है। अब तुम अपने शौहर का मातम करो बैठकर। मेरी सास ने मुझे नफरत से देखते हुए कहा, पर हैरत की बात थी कि सास की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। वो बस मुझे ही अपनी नफरत का निशाना बना रही थीं। मेरे शौहर के मरने की बात हर तरफ फैल चुकी थी, पर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी वो ये कि मेरी सास ने तो मेरे शौहर की मैयत को सामने लाया ही नहीं था, ना ही मैंने उसका चेहरा देखा था आखिरी बार। मुझे तो तदफीन का भी नहीं मालूम कि शौहर की तदफीन कब और कहाँ हुई थी। मैं इस कदर गम में डूबी हुई थी कि मुझे हालात का अंदाज़ा नहीं कब और कैसे गुजर गए। यहाँ तक कि 2-3 दिन गुजर गए। अब मैं थोड़ी संभल चुकी थी, मुझे होश आ चुका था, मैं खुद को पहचानने लगी थी। मैंने सोचा कि अब इस घर में मेरा क्या काम, जहाँ पहले ही सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं, ख़ासकर मेरी सास। मुझे फ़ौरन अपने माँ बाप के घर चले जाना चाहिए। पर फिर मुझे अपने अब्बा की बात याद आ गई। अब अगर तू मरने के भी करीब हो तो इस घर में मत आना। हम लोग तेरे लिए और तू हमारे लिए मर गई है। तूने हमारी खुशी के खिलाफ जाकर शादी की। हम तेरे लिए तो अच्छा ही सोच रहे थे ना। तू हमारी बेटी थी, हम तेरे दुश्मन तो ना थे। अब्बा ऐसी ऐसी बातें करते कि मेरा दिल परेशान हो जाता, मगर मैं कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि अब्बा की ज़िंदगी में एक बार अगर कोई फ़ैसला हो जाता तो वो वापस पलट कर नहीं देखते थे, ना ही उस फैसले पर मज़ीद सोचते थे, बस उस पर अमल करते थे। मेरा दिल परेशान था। बहरहाल मैंने सोच लिया कि इस घर से जाकर किसी दारुल अमान में रह लूँगी, पर यहाँ न रहूँगी। यूँ मैं अपना सामान मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठा करके पैक करने लगी। मैंने अपना बैग बड़ा सा करके तैयार कर लिया था। मुझे बैग तैयार करते देखकर मेरी सास मेरे पास आकर बोली, तू क्या कर रही है? मैं इस घर से जा रही हूँ, मेरा शौहर तो नहीं रहा, अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास आंसू पोंछने लगी। बेटी, अब तो तुम उसकी निशानी हो, क्या तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाओगी? क्या तुमको बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा अपनी बूढ़ी सास पर? मैं उनका ये रवैया देखकर हैरान रही। बूढ़ी सास, आप तो कहती थीं कि तुम इस घर से चली जाओ। मैं मनहूस हूँ, ये आप ही ने कहा था, फिर आप मुझे रुकने का क्यों कह रही हैं? मैंने तनसन पूछा था, कहीं मैं आपके दूसरे बेटे को भी न खा जाऊं? मैंने एक और तंज भरा जुमला उन पर कसा था क्योंकि अब मैं इस घर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। अपनी सारी भड़ास उन पर ही निकाल रही थी, पर मेरी ये सब बातें सुनने के बावजूद भी मेरी सास को गुस्सा न आया। उनके चेहरे पर तहम्मुल भरी मुस्कुराहट थी। मेरे करीब आकर मेरे माथे पर बोसा दिया और बोली, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, तुम मेरे बेटे की निशानी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरे दिल के करीब हो, खुदा के लिए ऐसा मत सोचो, तुम तो मेरी जान हो। अपनी सास की ये बातें सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई थी कि वो कैसी बातें कर रही थीं। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद करती हैं, लेकिन अब मुझे इस घर से जाना होगा।
मैं उनकी खुशामदी वार से भी बचना चाहती थी। नहीं बेटी, मैं तुम्हें कहीं नहीं, अपने ही बेटे से तेरी शादी कर दूंगी। मेरी सास ने ये बात कहकर मुझे हैरान कर दिया था। मैं उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, पर मैं बेसहारा थी। फिलहाल किसी के घर जा भी नहीं सकती थी। बाहर के हालात का तो मुझे अच्छे से इल्म था। फिर मैं अपनी सास के कहने पर रुक गई। इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। मैं समझी थी कि शायद वो मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढेगी। जाहिर है शौहर की वफात तक तो ठीक था। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी, ना कभी उससे बेवफाई करने का सोच सकती थी। पर अब जब शौहर ही नहीं रहा तो फिर मैं क्या करती। मैंने अपनी सास ही की बात मानना थी। मेरी सास कहने लगी कि बेटी, ज़िंदगी में औरत के लिए बहुत मौके आते हैं जब वो अपने आप को बेमौल करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सकती है। पर मैं तुम्हें बताऊं कि ज़िंदगी आसान तभी होती है जब उसके सर पर शौहर का साया होता है। तुम बिल्कुल भी इस बात की फिक्र नहीं करो। तुम्हारी माँ की बचाहूँ में एक अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढूंगी। अपनी सास के इस रवैये पर मैं भी मुतमईन हो गई कि शायद बेटे के मरने के बाद मेरी सास को मैं वाकई अच्छी लगने लगी होंगी कि उसने मुझे पसंद किया था। मैं उसकी मोहब्बत की अलामत थी। पर मैं क्या जानती थी कि ज़िंदगी में क्या लिखा है। मेरी सास ने 2-3 दिन बाद ही मुझ पर जोर देना शुरू कर दिया कि तुम्हारी शादी मैं अपने दूसरे बेटे से करूंगी। मुझे ये सोचते ही वहाब का वो रवैया याद आता जो उसने शादी के तीसरे दिन मुझसे रवा रखा था। वहाब तो मुझसे ऐसे बात करता जैसे मैं कोई कनीज़ या लौंडी हूँ। मुझे उसकी तबीयत बिल्कुल पसंद नहीं थी। जो शख्स अपनी भाभी की इज़्ज़त नहीं कर सकता वो अपनी बीवी की इज़्ज़त क्या ही करेगा। मैं दिल में सोचने लगी। फिर सोचा कि शायद हो सकता है कि उसे मैं बुरी लगती हुई हूँ। लेकिन मेरे शौहर की मौत के बाद तो सब कुछ बदल गया था। मैंने अपनी सास की मर्ज़ी के आगाज़ जब मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई, मेरी सास ने कहा कि तुम्हारा निकाह मैं अपने बेटे से कर देती हूँ। मैं खामोश थी, माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती थी, सो मैंने खामोशी से सर झुकाकर इस शादी के लिए रजामंदी दे दी। यूँ मेरा निकाह मेरे देवर के साथ पढ़ा दिया गया। वहाब अली की मैं बीवी बन चुकी थी। वहाब अली बहुत खुश था, लेकिन मसला तो ये था कि मोहल्ले के किसी भी घर से कोई भी इंसान हमारे घर की शादी में नहीं आया था। ये शादी सिर्फ 6 लोगों के सामने हुई थी। मेरी सास ने कहा, मोहल्ले के लोग कहेंगे कि अपने शौहर के जाते ही उसे भूल गई और उसके भाई से शादी रचा ली, इसलिए मैंने ज़्यादा किसी को दावत नहीं दी। ये शादी हमारे बीच ही रहेगी। हम बाद में धूमधाम से वलीमा करेंगे तो सभी को मालूम पड़ जाएगा। वैसे भी लोग आजकल बेटियों की मजबूरी को नहीं समझते। मेरी सास बार बार मुझे ये एहसास दिलाती कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मैं भी उनको पाकर उनका ये रवैया देखकर खुश थी। इसीलिए अब मुझे दुनिया भर की फिक्र नहीं थी कि लोग क्या कहते हैं। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी, उसी कमरे में जहाँ मुझे शादी के बाद पहली बार लाया गया था। मेरा शौहर यानी कि मेरा देवर मेरे कमरे में आया और मुझसे बड़ी मोहब्बत से बात करने लगा। आज उसके लहजे में इज्जत झलक रही थी। आप तो बड़ी ही पक्की निकली। आपने मेरे भाई के मरने के बाद उससे बेवफाई नहीं की। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ इस बात के लिए। मेरा देवर शर्मिंदगी से बोला, और अगर आप इस तरह ना करती, अगर आप इस घर से चली जाती तो शायद हम आपके बारे में मुख्तलिफ बातें सोचते, लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप अपनी वफा की पक्की हैं। मैं उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वो अभी भी मुझे आप कहकर बात कर रहा था। यहाँ तक कि वो मेरे पास भी नहीं आया, दूर से ही बैठा मेरी तारीफ़ें कमरे से बाहर चला गया। मेरे जहन में निकाह वाले वक्त का मंजर घूमने लगा। मैंने तो निकाह के वक्त अपने दस्तखत किए थे, पर अभी तक मैंने अपने शौहर यानी वहाब अली के दस्तखत नहीं देखे थे। न ही उसने मुझे अपने निकाह में कबूल करते हुए मैंने कोई कबूल है की आवाज़ सुनी थी। या अल्लाह, ये क्या मौजरा है? क्या मेरा निकाह वाकई वहाब अली के साथ हुआ है या किसी और के साथ? मेरा दिल तो तड़पने लगा, डूबने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सास ने क्या चक्कर चलाया। मोहल्ले के बहुत ही थोड़े लोगों की मौजूदगी में ये निकाह हुआ। उसमें मेरा शौहर मेरे सामने नहीं बैठा, कहा कि दूसरे कमरे में है, उसके दस्तखत करवा लेंगे। पहली शादी वाले चौंचले रखे जा रहे थे। हालांकि मैं शादीशुदा थी। निकाह पर दस्तखत करते हुए मुझे क्या ही शर्म आनी थी, पर ना जाने मेरी सास को क्या सूझी
कि मेरे सामने अपने बेटे के दस्तखत भी नहीं करवाए, जबकि मेरे जहन में ये मंजर चलने लगे। मैं यही सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि अब के आने वाला वक्त तो इससे भी ज़्यादा कठिन होगा। कहीं मेरा शौहर वहाब अली की बजाय कोई और तो नहीं। इस सोचने तो जैसे मेरे दिल पर छुरी चला दी थी, मगर मुझे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। सुबह के 10 बजे थे। मैं अपने कमरे में ही गुमसुम बैठी थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा बाहर एक औरत खड़ी थी। उस औरत को देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि ये कौन है। मैंने उससे पूछा भी कि आप कौन हैं। बोली कि तुझे नहीं पता, अब इस घर में मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। मैं उसकी बात सुनकर उछल पड़ी। मैंने पूरे घर में देखा, न ही मेरी सास थी, न मेरी नंदे और न ही कोई और। लगता था कि इन लोगों ने घर मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया है, पर घर की चीज़ें तो इधर ही पड़ी हैं। मैं दिल में सोचने लगी। पूरा घर घूमकर देखा, पर घर में कुछ भी नहीं था। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर थीं। मेरा तो दिल कटने लगा। मैंने कहा कि ये सब लोग कहाँ गए। वो औरत मेरे चेहरे पर ही हंसकर बोली, मैंने तुम्हें कहा ना, अब इस घर की मालकिन मैं हूँ तो मैं हूँ। वो लोग इस घर से जा चुके हैं, अब तुम मेरे साथ रहोगी जाने मन। उसने मुझे अजीब सी निगाहों से देखकर कहा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी? मैं भी जा रही हूँ इस घर से। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं गुस्से में आ गई, पर इससे पहले कि मैं बाहर निकलती, एक आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। ये तो हट्टा कट्टा सांड था। इसका कद भी बहुत ऊंचा था। इसे देखकर लगता जैसे ये अभी सबको खा जाएगा। कहने लगा, ए लड़की, ज़्यादा शोर मत कर, अपने कमरे में जाकर बैठ जा। तेरी सास और देवर तुझे मेरे हाथों बेच चुके हैं। अब मैं तेरे साथ जो भी करूं वो मेरी मर्जी है। मैंने तेरी कीमत अदा की है। खुदा के लिए ऐसा न करो, मैं शरीफ माँ बाप की बेटी हूँ। वो आदमी कह लगाकर हंसने लगा। चलो ये तो और अच्छी बात है, इसका मतलब तुम्हारी कीमत ज़्यादा लगेगी। शबनम, इसको इस घर में ना रखो। इसको इस घर में ना रखो, ऐसा न हो कि वो मजनू इसे ढूंढता हो यहाँ तक आ जाए। मैं और ज़्यादा चीखने लगी, पर इस सब का कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे मुंह पर पट्टी बांधकर मुझे गाड़ी में फेंक दिया गया और फिर ये लोग मुझे एक अजीब सी जगह पर ले गए। तंग गलियां, छोटे छोटे मकान और बदबूदार गोशे, इनको देखते ही करहत आती थी, पर मैं क्या कर सकती थी। अब ये गलियां मेरा मुकद्दर बन चुकी थीं। मैं बेची जा चुकी थी। मेरी सास ने मेरे साथ वो खेल खेला जो कोई औरत किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। पर मेरी सास को न जाने मुझसे क्या ही दुश्मनी थी कि मुझे उसने कोठे वालों के यहाँ बेच दिया और वो घर छोड़कर खुद चली गई। मेरा दिल कट गया था। ना ही माँ बाप का सहारा था, ना ससुराल का। अब मैं बीच में पिसती तो क्या ही कर सकती थी। यूं मैं इस जिंदगी में ढलने लगी, मगर मेरा दिल बिल्कुल न मान रहा था। शायद अगर मैं ऐसे ही रहती तो खुश रहती, लेकिन फिर जिंदगी ने मुझे वो रूप भी दिखाया कि मैं उम्र बिताने लगी। एक दिन मेरे पास एक आदमी आया तो रात के अंधेरे में था, पर जब सुबह मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरी तो चीखें निकल गईं। वो कोई और नहीं, मेरा शौहर उमैर था। उमैर रात भर मुझसे यही बातें करता रहा कि मुझे मेरी बीवी छोड़कर चली गई। मेरी माँ ने मुझे मना किया था कि वो तुझे छोड़कर भाग जाएगी, इससे शादी मत कर, पर मैंने उस पर भरोसा किया। वो तो हमें बदनाम करके चली गई। मेरी माँ ने मजबूरन वो मोहल्ला भी छोड़ दिया जिसमें हम रहते थे, बल्कि उस जिंदगी को ही खैराबाद कहकर दूसरे शहर में आ गई। मैं तो किसी काम की वजह से कुछ अर्सा घर से गायब हो गया था। मैं उमर की मुकम्मल बात नहीं समझी थी, ना ही वो मुझे सब कुछ बता पाया था। सुबह जब वो जागा, मुझे देखकर वो भी हैरान हुआ। रात वाले रूप से मैं अब मुख्तलिफ लग रही थी। मैंने मेकअप और भारी साड़ी नहीं पहन रखी थी, अब मैं एक आम लड़की लग रही थी। मुझे अपने सामने देखकर उसने हैरत से अपने यार में भी फूट फूट कर रोने लगी। उमर, तुम क्या जानो कि मुझ पर क्या बीती है? तुम तो मुझे ही बेवफा समझ रहे हो। तुम्हारी माँ ने मुझे इन लोगों के हाथों बेचा है। यकीन ना आए तो इन सब से पूछ लो। यकीन ना आए तो अपनी माँ से कुरान पर हाथ रखवा लो। मैं जज्बाती हो गई थी। अब क्या फ़ायदा इन बातों को करने से? उमर दुखी दिल से बोला, अब न वो वक्त रहा है, न वो जज्बात, और न ही आने वाली ज़िंदगी के वो ख्वाब। उमर अफसरदा लहजे से बोला, मगर उमर, मेरा तुम्हारे साथ निकाह तो है ना? तुमने मुझे तलाक नहीं दी थी। मैंने आखिरी उम्मीद पर कहा तो उसने मुझे वहीं बैठे बैठे तलाक दे दी और मुंह फेर कर वहाँ से चला गया। शायद मुझ जैसी औरत के साथ अब कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था।
میرا شوہر بھی تو رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے ہی یہاں آیا تھا، پر عورت پر ہوا ظلم بھی اس کا قصور بن جاتا ہے۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو آج تک خشک نہیں ہوئے۔ رات ہوتے ہی میری آنکھیں آنسو بہانے رات ہوتے ہی میری آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ سوچتی ہوں کہ کاش عمیر مجھے قبول کر لیتا، کاش وہ مجھے اس دن طلاق نہ دیتا، تو دل میں کوئی امید رہتی کہ وہ واپس آئے گا۔ پر وہ ظالم تو سارے سلسلے ختم کر کے مجھے اس دلدل میں اکیلا رلنے کے لیے چھوڑ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا عمیر میرے ساتھ مخلص تھا؟ غلطی کس کی ہے، میری ساس کی